Hello and welcome one and all to Parvaz Academy. From today we are going to start your Parvaz to GK SSB exams, your Parvaz to clear the finance account assistant exam. Let's start from today. The first lecture, in this lecture we will be discussing about the general knowledge portion with special reference to Jammu and Kashmir. And today's first topic that I will be dealing with is the physical and political divisions of India. ये जो टॉपिक है दिस इज कंसिडर टू बी द टफेस्ट टॉपिक बट दिस इज नॉट द टफेस्ट दिस इज द easiest topic if you have the understanding of all the things regarding particularly the physical divisions. Political divisions is a bit slightly, I would say, easier. So let's start this today's lecture. I would once again welcome you all, and first of all, if you are new to this channel, please click the subscribe button so that you get the notifications regularly. Let's start this lecture with this first question on your screen. Here is the first question. How many states and union territories does India currently have? इंडिया में करंटली कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? यू मस्ट बी saying कि ये क्या questions हैं? This is the easiest question. Obviously, we will start from the easier questions and gradually we will move towards the most difficult or more difficult questions. So let's first answer this question. There are how many states? I think everybody should know this. 28 states and 8 union territories are there in India at present. If we talk about India at present, that's in 2025, we have 28 states and we have 8 UTs, union territories. So the last major change was brought in 2019 when the Jammu and Kashmir was reorganized, and all of you know that Ladakh became a separate UT and Jammu and Kashmir became a separate UT. So that was the last amendment, but since then there has no change. So we have option B correct. That is, this option would be correct, option B. Sorry, but I am not able to take this. Let me clear this first and then see. So this is your option B. That is the correct option. 28 and 8 UTs. So this is it for this question. This is pretty easy question. I know that you must be wondering why are we revising this portion, because it comes under your political divisions part. So let's go to the next question. Here is the next question. India is described as a quasi-federal state because. Why India is described as quasi-federal? This is a question that you must know. States have more powers than the union. States के पास ज़्यादा powers as compared to union. Union and states have equal powers. Union and states have the equal powers. Union has a bias and stronger powers in key subjects. Constitution makes India fully unitary. So answer this question as per your understanding so that I can explain it more better to you. Let me first make this little bit more clean. Okay. Now, when we talk about this question, quasi-federal, what does quasi-federal mean? You should first know that, quasi-federal का पता होना चाहिए कि माने होता क्या है. quasi-federal का मतलब होता है जब हम कहेंगे कि सेंटर को ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू जो स्टेट्स हैं हमारे. अगर सेंटर और स्टेट्स के इक्वल पावर्स होते तब हम बोलते फेडरल. तब हम क्या बोलते? फेडरल स्टेट बोलते. बट सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है एज़ कम्पेयर टू व्हेन सेंटर हैज़ मोर पावर्स, सेंटर हैज़ ग्रेटर पावर्स as compared to your states. When center has more powers as compared to your states, तब हम बोलते हैं it is quasi-federal, not completely federal. Quasi means partly as well. Quasi means partly as well. यानी कि partly federal है इंडिया का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं अभी. So इसका आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. यूनियन हैज़ अ बाइस एंड स्ट्रॉन्गर पावर्स इन की सब्जेक्ट्स, है ना. So, अगर आप कुछ की सब्जेक्ट की मैं बात करूं, जैसे हमारा डिफेंस हो गया या फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है. डिफेंस के बारे में तो आपको पता ही है, सारे पावर जो है यूनियन के पास ही है. कोई भी स्टेट
के पास डिफेंस से रिलेटेड कोई पावर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से हम बैंकिंग की बात करेंगे, बैंक्स को रेगुलेट करना, दैट्स आल्सो द होल एंड सोल वर्क ऑफ द स्टेट। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया को क्वाजी फेडरल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is your next question. In the 1950 Constitution, which of the following was a Part B state? 1950 का जो Constitution था उसमें Part B state इनमें से कौन सा था? You have given some states and you need to find out which was placed in the Part B. Actually, this is related to the इनिशियल जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, तब एक क्लासिफिकेशन हुई थी स्टेट्स की, तो उससे रिगार्डिंग ये है। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे तब, जिसको हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी के नाम से रखा था। अगर मैं बात करूं पार्ट ए की, तो उसमें वो वाले स्टेट्स थे जो ऑलरेडी क्या थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी कि जो हमारे पास पहले से ही ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो वाले स्टेट्स थे। पार्ट बी की बात करूं मैं, तो फॉर्मरली प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे पार्ट बी में। तो प्रिंसली स्टेट्स में एक जम्मू एंड कश्मीर का भी स्टेट था। पार्ट बी में हम देखेंगे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे आपके पास मैसूर था, इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें था। तो दीज वार द स्टेट्स जो पार्ट बी में बिलोंग करते। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो अजमेर यहाँ पे है, ये पार्ट सी में आता था, पार्ट बी में नहीं आता था। मद्रास पार्ट ए में आता था, बिकॉज मद्रास वाज ऑलरेडी द ब्रिटिश प्रोविंस, तब ये ब्रिटिश प्रोविंस था, तो ये पार्ट ए में आते थे। तो पार्ट ए में आते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस जो ऑलरेडी थे, पार्ट ए में ब्रिटिश प्रोविंसेस आते थे। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करती थी पहले वो वाले आती थी। तो अजमेर की अगर मैं बात करूँ, ये पार्ट सी में आता था। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट इज़ मैसूर पार्ट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। सो आई होप यू हैव understood this concept. This is the earlier classification of states when states were divided into 4 types: Part A, Part B, Part C, and Part D. Part A was in Part A there were those states which were already the British provinces like Madras, Bombay, and Bengal, like that. And in Part B contains the princely states, which were the princely states earlier. So there was Mysore, there was Jammu and Kashmir as well, Saurashtra as well. So you have to remember this as well. Well, Part C and Part D, if we talk about that, you should know that in Part C, Chief Commissioners provinces were there, जिनको एडमिनिस्टर किया जाता था सेंटर की तरफ से, जिसमें दिल्ली, अजमेर और भोपाल आता था। तो अगर हम अजमेर की बात करेंगे, दिस वाज द पार्ट ऑफ पार्ट सी। एट द सेम टाइम पार्ट डी में आते थे यूनियन टेरिटरीज। पार्ट डी कंटेन्ड यूनियन टेरिटरीज। पार्ट डी की अगर मैं बात करूं तो इसमें यूटीज हुआ करती थी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is question number 4. Who headed the States Reorganization Commission, SRC? This is very important as well. States Reorganization Commission. Let's talk about this a bit. SRC was formed in 1953. Before this, there were 2-3 commissions that were formed, but this is the most important among them. One of them was JVP, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ पटेल कमेटी। JVP कमेटी करके एक आया था, उसमें भी इन्होंने ये कमीशन बनाया था स्टेट्स कमीशन के नाम से। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस SRC फर्स्ट। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1953 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956। इसके जो चेयरमैन थे दैट वाज जस्टिस फजल अली। तो जस्टिस फजल अली आपको याद रखना है, जस्टिस फजल अली वाज द चेयरमैन ऑफ दिस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके जो एक 2 और बंदे थे जो इसमें मेंबर थे, जिसमें HN कुंजरू भी थे, और one person was there. First was okay, I'm not getting his name on my tips. Okay, let's talk about this SRC Commission 1953. So the correct option here would be B. Correct option would be
B. Justice Fazal Ali was the, it's not C, it is actually B. So Justice Fazal Ali Commission, इस SRC कमीशन को हम बोलते भी थे जस्टिस फजल अली कमीशन. एंड इसके जो मेंबर्स जो मैंने आपको बताया, कुंजरू, एच एन कुंजरू मैंने एक नाम बताया था आपको अभी, and the second person was K.M. Panikkar. Yes, K.M. Panikkar. So remember these two names as well. And this commission, अगर मैं इस कमीशन की बात करूँ, इसके रिपोर्ट की बात करूँ, तो इसने यही कहा था कि we do not recommend one language linguistic states, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि एक लैंग्वेज एक स्टेट हम रिकमेंड नहीं करेंगे, बट वी कैन मेक लैंग्वेज वन ऑफ द features on which we can divide the, or we can create the states. Okay, so you have to remember this Fazal Ali Commission. Then moving to the next question, India's first linguistic state 1953 was, so this is actually asking you which was the first state that was created on the basis of language, linguistic state. So you all must remember this. Andhra Pradesh was the first linguistic state, so option C would be the correct option. So Andhra state, actually it was that time Andhra state, it was formed in 1953. और इसमें जो जिन लोगों ने, जो लोग वहाँ पे रहते थे वो थे तेलुगु स्पीकिंग पर्सन्स, तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए. ओके, और ये कब हुआ था, जब पोटी श्रीमालू जो है उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी और वो फिर उनकी देहांत हो गई थी. लेटर ये जो आंध्र स्टेट है और हैदराबाद स्टेट, ये आंध्र प्रदेश बनता है 1956 में. जब हम एसआरसी की हमने अभी बात की, जब एसआरसी को लागू किया गया तब ये आंध्र स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश. तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ दीज फॉर्म्ड फर्स्ट, आंध्र स्टेट और आंध्र प्रदेश. सो आंध्र स्टेट वाज फर्स्ट, देन हैदराबाद को इसमें मिला के आंध्र प्रदेश बनाया गया 1956 में. 1956 में एसआरसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. वन मोर पॉइंट इज हियर दैट महाराष्ट्र वाज क्रिएटेड इन 1960. इसको गुजरात से जब अलग किया, गुजरात को जब अलग किया गया बॉम्बे से, तब महाराष्ट्र बना था 1960 में. तमिलनाडु जो है 1969 में बना था. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here is the question, which act created the state of Telangana in 2014? कौन से एक्ट के जरिए स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाया गया 2014 में? Well, we are studying the political divisions of India, so this is very important lecture. इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो क्रिएशन ऑफ स्टेट्स एंड इसकी बात की है अभी तक, और ये दिस इज़ वन मोर क्वेश्चन दैट्स टॉकिंग अबाउट ए क्रिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट. दिस इज़ इन 2014 एंड दिस वाज आंध्र प्रदेश reorganization act. इसका ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, बिकॉज तब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था. तेलंगाना तब इंडिया का 29th स्टेट बना था, लेकिन अभी 28 ही क्यों है? यू ऑल नो दैट कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था उसको यूटी बना दिया गया. सो देयर आर ओनली 28 लेफ्ट नाउ. सो ये जो आंध्र प्रदेश, सॉरी ये जो तेलंगाना का क्रिएशन किया गया था, ये 2 जून को हुआ था. 2 जून, 2 जून 2014, और इसी दिन ये तेलंगाना वाले अपना स्टेट दिवस भी मनाते हैं, यानी कि स्टेट डे. तो ये आपको याद रखना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is, under JNK Reorganization Act in 2019, Ladakh is a UT with a legislature, without a legislature, merged with JNK, separate with legislative council only. So this is pretty easy question. All of you must be knowing this. हमने काफ़ी बार पढ़ा है that in 2019 when JNK was bifurcated, it was divided into 2 UTs. Jammu and Kashmir UT was given the legislative assembly, whereas UT of Ladakh does not have this assembly. Okay, you have to remember this. Jammu and Kashmir with legislature, UT of Ladakh without legislature. Ladakh functions directly under the government, और वहाँ पे LG अपॉइंट होते हैं. ठीक है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती हैं लद्दाख के जो भी वहाँ पे LG होंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर.
Now, moving to the next question. Article 371A provides special provisions for A. Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam. Okay. आर्टिकल 371A में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, आपको बताना है इनमें से किस स्टेट को अप्लाई होता है आर्टिकल 371A। देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टेट्स को कोई स्पेशल प्रोविजंस देते हैं। इसी तरह से 371A की मैं अगर बात करूं, दिस 371A इज़ द आर्टिकल दैट बिलोंग्स टू नागालैंड, जो नागालैंड को बिलोंग करता है। ये नागालैंड को क्या देता है, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है। जो वहाँ पे नागा कस्टमरी लॉज है उनको, जो वहाँ के लैंड एंड रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप के लिए, जो रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। सो नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट उनको अप्लाई नहीं होता है जब तक ना उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको अप्रूव करेगा। सो 371A यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस बिलोंग्स टू नागालैंड। ओके, 371B की अगर मैं बात करूं तो वो असम को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देता है, 371B। 371C की अगर मैं बात करूं, ये असम के लिए, सी जो है वो मणिपुर के लिए, इसी तरह से डी 371D आंध्र प्रदेश के लिए, 371F सिक्किम के लिए, 371G मिजोरम के लिए। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, इससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका आंसर करना है। सो लेट्स रीड द असर्शन फर्स्ट। व्हाट इज असर्शन? द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग एवरी ईयर। हिमालयाज जो हैं अभी भी राइज कर रहे हैं, अभी भी उनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, एलिवेशन जो है बढ़ रही है। रीज़न क्या दिया है? द इंडियन प्लेट कंटिन्यूज टू मूव नॉर्थवर्ड। इंडिया का जो प्लेट है वो कंटिन्यू है, दैट कंटिन्यूज टू मूव नॉर्थवर्ड, यानी कि वो नॉर्थवर्ड की तरफ कंटिन्यू मूव कर रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो देखें दोनों, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। फिर अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो ये जो है रीज़न, दिस एक्सप्लेन्स दिस ब्यूटिफुली, इसने पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसका ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन वुड बी द ऑप्शन ए। अब आप बोलेंगे क्यों? देखिए क्यों, अगर हम बात करेंगे ना हमारे हिमालयाज़ की, जो हिमालयाज़ है ना, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये आपको पता होना चाहिए। जो हिमालयाज़ है हमारे, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयाज़ आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये टर्शरी पीरियड्स में बने हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं। और ये बने थे जब कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट का विद द यूरेशियन प्लेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कब बने थे ये? जब इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट का कोलिजन जब हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ, तब ये बने थे। ओके, तो अगर मैं आपको थोड़ा और इसमें डिटेल में जाऊं तो आपको ये पता होगा कि लास्ट ईयर रिसेंटली साइंटिस्ट ने कहा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट बढ़ चुकी है, जिसकी हाइट कुछ 48 सेंटीमीटर कुछ बढ़ चुकी है। तो ये कैसे हो रहा है? देखिए जो हमारे ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, इसके अंदर जो सेडिमेंट्स हैं ये अभी भी बढ़ क्यों रहा है? जो रीज़न एक्चुअली है वो यही है कि 5 mm से 10 mm हर साल हमारे जो हिमालयाज़ हैं ये बढ़ रहे हैं, स्टिल राइजिंग बाय 5 to 10, सॉरी, दीज आर स्टिल 5 mm से लेके 10 mm तक हर साल इनकी हाइट बढ़ती है। ओके, और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ। जो इंडियन प्लेट है दैट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टेक्टोनिक प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज हो रहा है। ये आपको इस लेक्चर में मैं समझा नहीं पाऊँगा अच्छे से, क्योंकि मेरे पास वो मैंने डायग्राम यहाँ पे नहीं रखी है। तो जब हम जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो नॉर्थ हमारा इंडियन प्लेट है, ये जब नॉर्थवर्ड जाता है, सॉरी, जो इंडियन प्लेट है यहाँ पे, अगर इंडियन प्लेट है जब ये नॉर्थवर्ड मूव करता है तो ऊपर ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा देता है।
तो इसकी वजह से जो बीच में सेडिमेंट्स हैं उन पे प्रेशर बढ़ता है, जो टेक्टोनिक प्रेशर, तो उस प्रेशर की वजह से हिमालयाज़ की हाइट जो है वो राइज़ कर रही है। तो ये रीज़न है इसके पीछे कि क्यों अभी भी हिमालयाज़ की हाइट बढ़ रही है। अब आप बोलेंगे ये किस स्पीड से बढ़ रहा है इस प्लेट की ओर, यानी कि हमारा जो इंडियन प्लेट है इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर बताई जाती है, जो कि हर साल 5 सेंटीमीटर ये मूव करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ। इसी की वजह से यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होता है और ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह का भी खतरा है, आते रहते हैं। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग भी होती हैं इस वजह से। जियोग्राफी में जब हम इसको खोलेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी के लिए मुझे लगता है इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा दैट इज़ पार्ट ए, इसका आंसर रहेगा हमारा दैट इज़ असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू एंड द रीज़न एक्सप्लेन्स द असर्शन करेक्टली। ओके, so part A is the correct answer. Next question, मैच द आर्टिकल्स विद देयर स्टेट्स। अभी मैंने आपको ये आर्टिकल्स बोले थे, हालांकि मैंने आपको 371 ABCDE ABCD कुछ बोले थे, अभी आपको देखने यहाँ पे। अभी मैंने बोला था 371A किसके लिए बना था, नागालैंड के लिए आपको मैच करना है। सो पहला तो आपने अभी पढ़ा, ये तो नागालैंड का है, तो B के साथ 1 जाएगा। ओके, देन यू हैव 371। अब 371 किस लिए है ये आपको पता होना चाहिए। 371 जो है दिस इज़ फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो ये बी के साथ ए के साथ 2 जाएगा। 371H और 371F। अब मैंने आपको अभी ABCDEF तक बताया था। F मैंने बोला था ये सिक्किम के साथ जुड़ता है। एफ में जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं वो सिक्किम को प्रोटेक्ट करते हैं, और एच जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश को, तो सी के साथ आएगा 4 और जो बचा डी उसके साथ आएगा 3। तो राइट आंसर वुड बी A2 B1 C4 3 D3 C4 D3। So these are some special articles that have been included in the Indian Constitution for protecting certain rights of these states, so that these states feel much more integrated with the other parts of our country. So ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट कुछ नहीं है, आज सिर्फ इतने 10 क्वेश्चंस, इसमें हमने जो भी पॉइंट्स सीखे आई होप यू गाइज हैव नोटेड दिस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें जो कि आपको नोट करने चाहिए थे, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपने अभी तक भी परवाज़ एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस दफ़ा पूरी लेक्चर सीरीज़ हम जो FA का सिलेबस है उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस पूरे विंटर में। So I hope JKSSB will give you enough time, 3 to 4 months, to complete this syllabus. We will definitely complete this by the end of March. And today this was the lecture of general studies. But from tomorrow we will hopefully go with the accountancy as well on one part, because that जो है accountancy का syllabus जो है काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें काफ़ी marks भी हैं, आपको 30 marks. So we will master that as well as the general studies portion first, then the remaining syllabus. Thank you very much. Keep watching, keep subscribing. Goodbye.